In today's session of Bill Get Outs, we will be discussing regarding the connection between the heart and the lungs and what bypass surgery patients should know. So we will be discussing on this topic. As you all know, that heart and lungs both work as a team. So to take care of each other, both heart and lungs should be healthy. So to take us through, today we have with us Dr. Purvi. Dr. Purvi is a rehabilitation psychotherapist, a physiotherapist, and the chief physiotherapist at the Pratibha Prabhakar Navy Rehab Center. Dr. Purvi has helped many patients after bypass surgery and heart condition gain confidence through breathing practices, safe exercises, and rehabilitation guidance. So today she will be helping us to understand the relation between the lungs and the heart. And today's session is being organized jointly by Heart Health India Foundation and Society for Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. As you all know, at Heart Health India Foundation, we believe no patients or caregivers should feel alone. We bring together patients, families, doctors, and caregivers to create a space where real concerns are addressed and reliable information is shared. So Dil Ke Doubt is one such session where we talk openly and ask questions without any hesitations and also learn from the specialists we have. And Society for Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, this is an organization working to strengthen the patient care and recovery system across India. So together, Heart Health India Foundation, they are helping create safer, stronger recovery journey for patients and families. I would like now to introduce our specialist for today, Dr. Purvi. So I request Dr. Purvi to take over the session. And once the session is over, we will have question and answer sessions after that. So now it's over to Dr. Okay. Purvi. Thank you. Thank you, Mr. Sajid. And as we all know that, what is a connection? You already said that it's a connection between heart and lung and after bypass surgery. So I'll speak in Hindi and English, whichever is comfortable. Okay. तो एज अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट मैं सभी को एक्सप्लेन करती हूँ, सारे पेशेंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि जो हार्ट और लंग दोनों है, इट्स लाइक अ पार्टनरशिप. They work as a partner, and after the bypass surgery their partnership becomes more very important in the recovery of this cardiac surgery. So how they work, let us understand first. So the heart the organ which pumps the oxygenated blood, मतलब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो हमारा हार्ट सारे शरीर में देता है, सप्लाई करता है. और जो लंग होता है वो ऑक्सीजन हमारे हार्ट को देता है. जो लंग्स अपने ब्रीथ इन करते हैं, तो जो हमारा ऑक्सीजन बाहर से है वो लंग्स में जाता है और लंग्स के थ्रू हमारे हार्ट में जाता है और फिर हमारे हार्ट के थ्रू हमारे बॉडी को सप्लाई होता है. सो विदाउट लंग्स के बिना हार्ट कैन नॉट डिलीवर ऑक्सीजन, और हार्ट के बिना लंग्स किसको ऑक्सीजन देगा. इसीलिए उनका पार्टनरशिप समझना बहुत जरूरी है. तो ये हमेशा, अगर बाईपास सर्जरी है तो सिर्फ हार्ट का इश्यू नहीं है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द लंग्स, हमारे लंग्स का भी हमें ध्यान रखना है. तो आफ्टर सर्जरी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो हमारे चेस्ट मसल होते हैं या ब्रीदिंग होता है वो हमें थोड़ा वीक फील होता है सर्जरी के बाद, वो बिकॉज ऑफ द एनेस्थेशिया या इंसिजन. इट्स अ बिग ओपन हार्ट सर्जरी, इट्स अ बिग सर्जरी. तो उसके लिए हमें थोड़ा तकलीफ होता है, और समटाइम्स हमारे जो लंग की जो कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है. लंग कैन नॉट एक्सपैंड फुल्ली हमारे लंग्स जो है श्वास अच्छी तरीके से ले नहीं पाते हैं, शैलो ब्रीदिंग होता है. तो ये जो वीकर लंग्स है, वीकर लंग फंक्शन है, उसकी वजह से हमारे हार्ट पे स्ट्रेन होता है और रिकवरी ऑफ हार्ट इज स्लो. दैट्स वाई इसीलिए हमें कनेक्शन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट समझना जरूरी है. तो इसलिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें फिजियोथेरेपी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है.
तो जो हमारे सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद हमारा लास्ट सेशन भी हुआ था पेशेंट्स के लिए, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हुआ था, डॉक्टर मनीषा ने लिया था। तो जो थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, जिससे हमारी लंग कैपेसिटी बढ़े, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वो हम लास्ट सेशन में दिखाऊंगी। थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज, जिससे हमारे लंग्स एक्सपैंड होंगे और उससे हमारा ऑक्सीजनेशन टू द हार्ट इम्प्रूव होते जाएगा। और दूसरा मतलब कफिंग टेक्निक हम सिखाते हैं, जिससे अपना जो स्कार है, इंसिजन है बड़ा सर्जरी का, उसको सपोर्ट करके हमारे अंदर जो लंग्स के अंदर जो थोड़ा बहुत कफ जमा हो गया है एनेस्थेशिया की वजह से या पेन की वजह से, जो हम ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो कफ निकालने की जो टेक्निक्स होती है, कफिंग टेक्निक्स, वो भी हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट सर्जरी सिखाते हैं। और जेंटल मोबिलाइजेशन इन वॉकिंग, धीरे धीरे ग्रेडेड एक्सरसाइजेस, ग्रेडेड बेड एक्सरसाइजेस और वॉकिंग के थ्रू हम हमारा वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करते हैं और हमारे हार्ट को हील करने में मदद करते हैं। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं ये बताऊंगी कि हार्ट और लंग्स के रिकवरी अच्छे होने के लिए आपको ये फिजियोथेरेपी इम्पोर्टेंट है, और आपका एनर्जी उससे इम्प्रूव होता है, हीलिंग जल्दी होता है, और आपको जो कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं सर्जरी के बाद, पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस मतलब लंग की वजह से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन है, कभी कभी एटिलेक्टेसिस होता है। एटिलेक्टेसिस मतलब बिकॉज हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो जो लंग्स के नीचे के हिस्से के जो एरिया है, उसमें पूरी तरीके से हवा जाता नहीं है, ऑक्सीजन जाता नहीं है, तो उसकी वजह से हमें एटिलेक्टेसिस होता है। या फिर चांसेस ऑफ फ्लूइड इन द कैविटी मतलब प्लूरल इफ्यूजन, लंग की वॉल और थोरेसिक कैविटी की वॉल के बीच में प्लूरल वॉल बोलते हैं, उसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन। तो वो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट सीएबीजी का। या फिर तुम्हें निमोनिया भी हो सकता है, अगर हम अच्छे से कफ नहीं निकाल पाए तो वहां पे इन्फेक्शन होता है, और चांसेस ऑफ निमोनिया इज ऑल्सो वेरी हाई। और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमारा आईसीयू स्टे बढ़ता है, मतलब जो हमारे दिन होते हैं आईसीयू में रहने के पोस्ट सर्जरी में भी 3-4 दिन रहते हैं, वो और लंबे होते जाते हैं, बिकॉज हमारे ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से रिकवरी भी स्लो होती है। और इसीलिए हमें कनेक्शन बिटवीन हार्ट और लंग आफ्टर बाईपास सर्जरी समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा मतलब आपको ये कॉम्प्लिकेशन इम्प्रूव करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा मतलब ब्रेथलेसनेस, बहुत से बार सांस फूलता है। भी सांस क्यों फूलता है? तो वही रीजन, सेम रीजन है, सांस इसलिए फूलता है क्योंकि हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हमारे जो ये होते हैं मसल्स है, रेस्पिरेटरी मसल्स, वो वीक हो जाते हैं क्योंकि उसमें इंसिजन हुआ हुआ है। और इसके लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। और हमें कैसे ये ब्रेथलेसनेस कम करना चाहिए, सांस फूलना कैसे कम करना चाहिए? तो पर्स लिप ब्रीदिंग होता है, जैसे नाक से सांस लेके मुंह से धीरे से ऐसा फूंक मार के हम छोड़ेंगे, तो हमारा जो ब्रेथलेसनेस है वो कम होता है। तो ये टेम्पररी होता है। यूजुअली नॉर्मल पॉपुलेशन में जिसको सिर्फ प्योर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, जिनका सीएबीजी मतलब बाईपास सर्जरी हुआ है और उनको दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन मतलब उनको प्रीवियसली अगर अस्थमा नहीं है या सीओपीडी नहीं है, तो ये सारे पेशेंट्स में जो ब्रेथलेसनेस होती है वो कम होते मतलब उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो होता है, पर थोड़े टाइम के बाद वो कभी कभी लंबे टाइम तक रहता है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना है, जो इनिशियल फेज में आपका रिहैब है, पल्मोनरी रिहैब है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी। तो सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं होता है, पल्मोनरी रिहैब इज अ होलिस्टिक अप्रोच। उसमें आपको ब्रीदिंग के साथ आपको कफिंग टेक्निक दिया जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स दिए जाते हैं, अर्ली मोबिलाइजेशन दिया जाता है, आपका करेक्शन ऑफ द पोस्चर, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये सारा इन्वॉल्व करके अर्ली स्टेज में आपको
पल्मोनरी रिहैब एज अ होलिस्टिक अप्रोच करके आपका इम्प्रूवमेंट, आपका रिकवरी जो है वो फास्टर करने की कोशिश करता है। तो उससे बेनिफिट्स क्या होते हैं कि हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम होते हैं और हमारा रिकवरी फास्ट होता है। और बेटर ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमारे लंग्स ही ऑक्सीजन देते हैं हमारे हार्ट को, तो अपने हीलिंग हार्ट के लिए अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो ये हील्ड लंग्स से के थ्रू होता है। हमारे एनर्जी लेवल्स, हमारे स्टैमिना फॉर फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव होते जाते हैं और रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे, इम्प्रूव्स द लॉन्ग टर्म हेल्थ। हमारा हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाएगा, तो हमारे कॉम्प्लिकेशन कम होंगे और हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। So breathing exercises, exercise program, doing exercise program daily is very important, and taking your medicine along with the medicine. Not always this is a thing. So pulmonary rehab supports both lungs and your heart heal together. It's like a, it's not a pure pulmonary rehab. It's always a cardiopulmonary rehabilitation. मतलब हमारे हार्ट और लंग दोनों का दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये हमारा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हेल्प करता है। सो बहुत अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग टेक्निक और लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट होते हैं फॉर योर बेटर लंग हेल्थ। बेसिकली फेज वन, जैसे कि हमने पहले के एक दो सेशन हमारे कार्डियक रिहैब पे भी हो चुके हैं हार्ट हेल्थ फाउंडेशन के साथ। तो उसमें क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट फेज वन में हमें टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ना होने चाहिए, हमारी लंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, हमारे हार्ट को, हीलिंग हार्ट को ऑक्सीजनेशन बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्राम जो है हमारा सांस लेने का सबसे इम्पोर्टेंट मसल है, जिसकी वजह से हम सांस अंदर ले पाते हैं। और बिकॉज ऑफ द इंसिजन, मतलब हमारी जो स्कार है या जो हमारा सर्जरी की वजह से जो कट आया है हमारे चेस्ट पे, उसमें जो पेन होता है और बिकॉज ऑफ द एनेस्थेशिया जो कफ जमा होता है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हम इम्प्रूव करने का कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारे स्कार को ब्रेस करना है, हमें अच्छे से पकड़ना है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा, उनको बेल्ट दिया रहता है, तो वो जो बेल्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत दर्द है तो वो होल्ड करके, उसको ब्रेस करके, पकड़ के हमें डीप ब्रेथ लेने की कोशिश करनी है। जैसे ही हम डीप ब्रेथ लेंगे, बहुत सारे लोगों को खांसी आता है, तो वो खांसी के टाइम पे हमें थोड़ा हमारे स्कार पे प्रेशर देके, थोड़ा कमर से बेंड होके हमें कॉफिंग या हॉफिंग टेक्निक करना है, जिससे हमारा जो लंग्स में जमा हुआ कफ है वो हमारे सेंट्रल एयरवेज में आएगा और वहां से हम मुंह के थ्रू बाहर निकाल पाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, कॉफिंग और हॉफिंग टेक्निक एंड थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। जैसे कि मैंने बोला कि पेन होता है, तो पेन की वजह से हमारे जो लोअर सेक्शन ऑफ द लंग्स है, तो हमारी जो ये रिब्स होती है, जो यहाँ रिब्स के वहां पे चेस्ट के लोअर वॉल पे हम हाथ रखेंगे और हमारा डीप ब्रेथ नाक से लेंगे और एक्सेल थ्रू माउथ, उसे हमें पर्स स्लीप ब्रीदिंग भी बोलते हैं, जिससे हम बैक प्रेशर क्रिएट करके हमारा एक्सपेंशन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा चेस्ट का जो एक्सपेंशन कम हो गया है सर्जरी की वजह से, तो वो इम्प्रूव होता है। प्लस हमें अपर चेस्ट पे हाथ रख के भी हम ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीद इन करके हम एक्सेल करेंगे। फिर हमें थोरैक्सिक एक्सपेंशन विथ मूवमेंट्स, मतलब थोरैस जो भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं विथ अपर लिम्ब मोबिलिटी, जैसे कि हम हाथ ब्रीद इन कर रहे हैं तो हम स्लोली हाथ ऊपर करते हैं और फूंक मारते समय हाथ नीचे करते हैं, ये एक एक्सरसाइज है। या फिर बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइज होती है। तो ये जो होती है वो इंडिविजुअलाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है। मतलब ये मैंने आपको जनरल एक्सरसाइज बताई है, बट हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट सर्जरी, आपको जब रेफरेंस दिया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट को, तो ये जो पेशेंट्स होते हैं उसका कंडीशन क्या है,
प्रीवियसली उसको कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन मतलब कोई प्रॉब्लम था क्या, अस्थमा था, सीओपीडी था, या दूसरा कोई कोमॉर्बिडिटी है क्या, डायबिटीज है, या दूसरा कोई प्रॉब्लम है क्या, अलोंग विद द कार्डियक प्रॉब्लम। वो सारा हिस्ट्री में देखा जाता है और उसके हिसाब से उनका एक्सरसाइज प्रोग्राम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम प्लान किया जाता है। और उसी के साथ हम ट्राई करते हैं हमारे लंग का कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए। अभी सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, असिस्टेड डिवाइसेस होते हैं, जिससे भी हम हमारा लंग कैपेसिटी अलोंग विद द ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा इंसेंटिव स्पायरोमीटर हमने बहुत कॉमनली देखा है, जब भी सर्जरी होता है तो बॉल वाला जो मशीन है सबके पास दिया रहता है, या फिर अभी वॉल्डाइन का स्पायरोमीटर, वॉल्यूम स्पायरोमीटर होता है। तो जब भी वो करने का टेक्निक, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट आपको प्रॉपरली दिखाते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर हम वो रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं तो उसका हमें फायदा नहीं होता है। वो भी हमारे लास्ट सेशन में डॉक्टर मनीषा ने हमें अच्छे से स्पायरोमीटर कैसे यूज करना बताया था। तो वो टेक्निक लर्न करना, इम्प्रूवमेंट उसमें कैसे देखना है, तो ये हमें हमें फिजियोथेरेपिस्ट सिखाते हैं। अलोंग विद द स्पायरोमीटर हम बलून एक्सरसाइजेस करते हैं, वो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको इसमें आईसीयू में सिखाते हैं। अगर कफ बहुत थिक है या निकल नहीं रहा है, या फिर चेस्ट एक्सरे में दिख रहा है डॉक्टर क्योंकि कफ जमा हो गया है, थोड़ा एटेलेक्टेसिस है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी दो। अलोंग विद द चेस्ट फिजियोथेरेपी हम दूसरे असिस्टिव डिवाइसेस जिससे कफ बाहर निकलता है, जैसे कि फ्लटर हो गया, म्यूको क्लियर हो गया, या फिर तुम्हारा एक्कापेला हो गया, या फिर एरोबिका, ऐसे अलग अलग प्रकार के डिवाइस होते हैं जिससे हमें मुंह में पकड़ के अगर हम उसमें फूंक मारेंगे तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है हमारे लंग्स के सेंट्रल एयरवेज में, पेरिफेरल एयरवेज में, और जो भी सारा कफ है, थिक कफ है, वो इजीली सेंट्रल एयरवे में आके फिर हम कफिंग टेक्निक करके वो कफ बाहर निकालते हैं और हमारे लंग्स का कैपेसिटी इम्प्रूव करते हैं। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है, दैट इज अ फेज 1। फेज 2 में क्या होता है कि बहुत बार, जैसे अगर ये अच्छे से फिजियोथेरेपी नहीं हुआ है फेज 1 में, तो ये कॉम्प्लिकेशन हमें फेज 2, मतलब जब भी हम डिस्चार्ज हो जाते हैं और अगर हमें थोड़ा एडवाइस नहीं मिला है कि घर पे क्या करना है, तो भी ये फेज 2 में आपके कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। और उसी टाइम पे हमें देखना है अच्छे से कि कोई सिम्टम्स तो नहीं है, हमारा ब्रेथलेसनेस बढ़ तो नहीं गया है। कभी कभी ये ब्रेथलेसनेस आपका लंग के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकता है। इट इज नॉट ऑलवेज कंपलसरी कि हार्ट की वजह से ही आपका ब्रेथलेसनेस है। कभी कभी घर जाके भी लंग्स में पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से भी ब्रेथलेसनेस बढ़ जाता है। या कभी आप मेडिकेशन पे हो फिर भी आपका हार्ट रेट बढ़ गया, आपको पैल्पिटेशन फील होता है, ये सारे सिम्टम हमें ध्यान देने हैं। तो ये सारा आपको इंफॉर्मेशन, पेशेंट एजुकेशन इज गिवन बाय योर फिजियोथेरेपिस्ट, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको आईसीयू में है। घर पे जाके आपको क्या क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, कैसे आपका ग्रेडेड मोबिलिटी बढ़ाना है, कैसे आपका वॉकिंग बढ़ाना है, कैसे आपका वॉकिंग का कैपेसिटी बढ़ाना है, और उसके साथ कैसे आपका वेंटिलेशन बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट इन लंग कैपेसिटी बढ़ेगा, क्या क्या पैरामीटर्स है जो आपने मॉनिटर करने चाहिए, देखने चाहिए, ये सारा एजुकेशन आपको रिटन फॉर्मेट में या वर्बल फॉर्मेट में आपको फिजियोथेरेपिस्ट हॉस्पिटल में इन पेशेंट में ही देंगे, ताकि आप वो घर पे फॉलो कर सके। और दैट्स व्हाई आई फील पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, and especially for the patient who are having previous लंग कंडीशन, जैसे कि सीओपीडी, अस्थमा या आईएलडी, ये सारे पेशेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गोइंग फॉर अ पल्मोनरी रिहैब सेशन इवन आफ्टर द सर्जरी, इवन आफ्टर द रिकवरी। अगर रिकवरी भी हो गया है, फेज 2 भी हो गया है, आपका कार्डियक रिहैब भी हो गया है, टू मेंटेन योर लंग कैपेसिटी एंड टू रिड्यूस योर ब्रेथलेसनेस, आपका जो सांस लेने का ब्रेथलेसनेस कम करने के लिए आपको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करना बहुत ही जरूरी है। और जैसे कि मैंने आपको सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता ही दिए हैं, तो वो आपको रेगुलरली करना है। दिन में इनिशियल फेज में आपको दिन में 3 बार करना है, दिन में आपको 3 बार स्पायरोमीटर करना है, 3 बार बलून करना है। और जब तक कफ नहीं निकल जाता, क्लियर नहीं होता,
तब तक आपको असिस्टेड डिवाइसेस भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपको दिन में 2 से 3 बार करना है ताकि आपका ब्रोंकियल हाइजीन मेंटेन रहे। और आपके यूजुअल जो हमारे टिप्स होते हैं कि आपको एक्टिव रहना है, बिकॉज ऑफ पेन, बिकॉज ऑफ आपका सर्जरी, आप बैठे रहेंगे एक जगह पे, वो नहीं चलेगा। आपको जेंटल वॉकिंग प्रोग्राम फॉलो करना है, सुपरवाइज एक्सरसाइज फॉलो करना है, जिससे आपका स्टेमिना स्टेमिना इम्प्रूव होगा, आपका सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। आपको खाने में भी ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन वाइज भी आपका लाइट मील करने हैं, बैलेंस मील, क्योंकि बहुत बहुत बार बहुत सारा एक साथ खा लिया तो भी हमें ब्रेथलेसनेस होता है, वो तो भी हमें लगता है कि अरे कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट है। स्मार्टली रेस्ट करना है, कभी आपको रेस्ट लेना है। आपका जो हेड साइड है, जो सिर का भाग है, वो थोड़ा सा एलिवेटेड रखेंगे तो आपके ब्रीदिंग में भी आपको आसानी होती है, क्योंकि बहुत बार हम फ्लैट सोते हैं, मतलब हमारे सिर का हिस्सा थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए, उससे हम बेटर ब्रेथलेसनेस कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट नहीं है बट सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस कंट्रोल। हमें जैसे कि एजुकेट किया जाता है, आपको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है बहुत सारी हॉस्पिटल में, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। डिफरेंट रिलैक्सेशन मेथड्स ट्राई करनी चाहिए पोस्ट सर्जरी, रेगुलर मेडिटेशन करने का कोशिश करना चाहिए। और म्यूजिक थेरेपीज अगेन वेरी वेरी नाइस, यू कैन से द पैलेटिव वे, उससे भी हमें बहुत कामिंग म्यूजिक विल हेल्प। और जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सुन सकते हैं, जिससे आपका एंजाइटी रिलेटेड ब्रेथलेसनेस कम होता है। एंड अवॉइड स्मोकिंग, पॉल्यूटेंट्स, बाहर जा रहे हो तो मास्क लगाइए, ताकि आप लंग्स का इन्फेक्शन के लिए आप ज्यादा मतलब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए फॉर एटलीस्ट फ्यू मंथ्स व्हेन यू आर गोइंग आउट पोस्ट सर्जरी, तो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका इन्फेक्शन प्रोटेक्ट करने के लिए, इरिटेंट्स और स्मोक से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मास्क यूज करना जरूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, एवरी स्मॉल स्टेप, ईच ब्रेथ, ईच वॉक एंड ईच पॉजिटिव हैबिट supports your lung and heart in working better together. So I think I have given whole information, and if any questions or if any queries are there, you can ask, or any other questions from your side, Mr. Sajid, if it is there, I'm open for that. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पूर्वी फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। आपने जो भी मैंने अभी बोले हैं, मेरे ख्याल से जैसे मेरा जब बाईपास सर्जरी हुआ था वे बैक इन 2018, उसके बाद ये सारे प्रोसेसेस किए थे, लेकिन क्या हुआ फॉर अ मंथ और सो, उसके बाद ये लास्ट 7 years आई हैव नॉट डन एनी एक्सरसाइज, लंग्स रिलेटेड एक्सरसाइज एंड, तो ये आप एक सजेस्ट कर सकते हैं कि जो नॉर्मली अभी जैसे मेरा 7-8 साल हो गए, इसके बाद अभी अगर मुझे कुछ करना है लंग्स के लिए, तो व्हाट एक्सरसाइज यू सजेस्ट कि ये करने से आपका लंग्स हेल्दी रहेगा? क्योंकि देखिए हार्ट को लेके हम टेस्ट वगैरह जो बहुत ये चीज करते हैं, बट लंग्स को लेके अभी तक कोई मतलब टेस्ट या ऐसा कुछ किए नहीं। आई डोंट नो हाउ माय लंग्स इज ऑपरेटिंग, की उसमें कोई डिफेक्ट है कि कुछ ये है, आई डोंट नो। तो आप ऐसा Okay, कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकते हैं जो हमको बाद में भी जो हम कर सकते हैं? okay. So फर्स्ट थिंग, जब भी हम हमारे पास जो कार्डियक पेशेंट आते हैं लाइक पोस्ट सर्जरी, यूजुअली हम उनको बोलते हैं, वी यूजुअली डू द पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आपका अभी का लंग का कंडीशन कैसा है। और अगर वो नहीं भी है, तो व्हाट वी ट्राई एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, वी फर्स्ट चेक एनी अंदर कुछ, मतलब हवा कैसे जा रहा है, तो वो ऑस्कल्टेशन, मतलब हमारे स्टेथोस्कोप से हम चेक करते हैं कि कैसे उनका आपका लंग हेल्थ कैसा है ओवरऑल। और देर आर फ्यू असेसमेंट थिंग, कभी भी हम जनरल नहीं देते हैं, फर्स्ट वी ट्राई टू सी व्हाट इज द करंट सिचुएशन, according to the current situation we plan a exercise program which they have to continue, and then there is like a high intensity exercises also in that. बट अगर मैं जनरल आपको आंसर करना चाहूँ, तो यू कैन डू फर्स्ट एनी पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग, सो यू विल कम टू नो एग्जैक्टली आपका अभी का लंग कंडीशन क्या है, और आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई लंग कंडीशन है क्या, अस्थमा था या कुछ सीओपीडी था। बहुत कॉमनली पोस्ट सर्जरी भी
सीओपीडी पता चलता है कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, और फिर हमारे सिम्पटम्स आते हैं कि हमें थोड़ा ब्रेथलेसनेस हो रहा है। फिर हमें लगता है कि ये हार्ट की वजह से, बट एक्चुअली वो दैट प्रॉब्लम इज नॉट बिकॉज ऑफ द हार्ट. हार्ट इज टेकन केयर ऑफ बाय सर्जिकल थिंग एंड द मेडिसिन एंड एवरीथिंग, but now this is a lung problem. So for that we check different tests, like एक तो मैं देखूंगी कि आपका एक सिंपल 6 मिनट वॉक टेस्ट या शटल वॉक टेस्ट करूंगी, जिसमें देखूंगी कि आपको चलने में कुछ ब्रेथलेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर डिफरेंट क्वेश्चनर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि आपको कौन से एक्टिविटी में ब्रेथलेसनेस हो रहा है. अकॉर्डिंगली वी प्लान द एक्सरसाइजेस. बट अगर जनरल बोलना चाहूंगी तो यही सारी जो एक्सरसाइजेस जो आप प्रीवियसली फर्स्ट फेज में करते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज, और फिर उसमें भी अलग अलग प्रकार का इम्प्रूवमेंट है, लाइक लंग इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग होता है. सो ये सारा डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट करंट स्टेटस वी प्लान एंड देन स्लोली स्लोली इंक्रीज. Okay. या फिर आप योग, अगर योग में बिलीव करते हैं, ऐसे इंडियन, इफ वी सी द इंडियन कल्चर, so it's very rich. The yoga is given by Hindu, this thing. So if you see, there are different pranayams which help us to maintain our lung capacity, which help us to improve our oxygen, you can say the, it improves our perfusion. जो ऑक्सीजन का लेवल है, अगर हम मैं यूजुअली लंग के पेशेंट के साथ डील करती हूँ, तो आई हैव सीन द इफेक्ट्स when they do the pranayam. We can actually see the improvement in the lung oxygen level. अगर पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन चेक किया तो जिनका कम रहता है because of the issue, but when they try to do the this pranayams, तो उस उनमें ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है. तो बहुत सारे डिफरेंट प्राणायाम है, उसके लिए भी हमें कौन से करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, वो ट्रेन्ड योग थेरेपिस्ट के पास से, और फिजियोथेरेपिस्ट को भी नॉलेज होता है कि आप लोगों ने, पेशेंट लोगों ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. बट कॉमन जो होते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम होते हैं, भस्त्रिका होता है, भ्रामरी होते हैं, ये सारे प्राणायाम जो है, दीज आर वेरी गुड फॉर योर लंग्स, विच दैट ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू डूइंग. Thank you, Dr. Pul. Do you have any questions? अगर किसी के पास क्वेश्चंस है, आप लिख के भी बता सकते हैं चैट बॉक्स में, और यू कैन आस्क ऑल्सो. Don't think there is any questions from anybody. I think there was few questions which were previously given by Swati to like by some participants. Okay, if you have those questions, then you can answer on this. Yeah, so there was one question that during recovery one can run. So it depends कि आप, जैसे फिर से मैं बताऊंगी कि आप कौन से स्टेज पे है, आपका रिकवरी, आप फर्स्ट स्टेज ऑफ रिहैब में है, सेकंड स्टेज ऑफ रिहैब में है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट. बट मे बी आफ्टर 6 months, इफ यू हैव डन द प्रॉपर कार्डियक रिहैब, डेफिनेटली यू कैन रन. अगर आप देखेंगे टाटा मुंबई मैराथन में, देयर आर पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन द कार्डियक सर्जरी, और उन लोगों, वो लोग भी रन करते हैं, हाफ मैराथन करते हैं, फुल मैराथन करते हैं. इफ यू सी, देयर इज अ ग्रुप which does that, and there are the training centers like Asian Heart Institute and Asian Reliance. They give the training for marathon for such patients. There are specific groups which train you for the running. So if it is a supervised training for the marathon, or supervised training for the running for the cardiac patient, then only it is better you go for that rather than just going for running like that. That was a one question. There was one more question that lifestyle to be followed after bypass surgery. I have already, I think, explained that you have to properly do the breathing exercises. You have to follow the walking program, which is prescribed by the physiotherapist. Or even if it is not there,
then at least regularly you have to walk for minimum 30 to 40 minutes to maintain the circulation in your arteries, which are, you know, repaired. And that is there. The nutrition is very important. Surgery हो गया मतलब कुछ भी खाना शुरू करना है, that is not, there are chances of re-surgery also, there are chances of again फिर से blockages होने के chances है. So nutrition is also very important, and the very important is the stress factor. We have to control the stress factor because stress से ही सारा problem शुरू होता है. And for that I have already explained meditation, different relaxation techniques, or different hobbies which you would like to pursue that will help you to reduce your stress. So this is a lifestyle you have to follow after your bypass surgery. There was one more question: breathing like pranayam, where there are many types, which is one that should be done when, after food at night, and for how long? So see, after food we cannot do any pranayam. So if it is a rule of a yoga that whenever you are doing any uh, asanas or any pranayam, you should be empty stomach for 2 hours. You cannot be doing it immediately after the food. Night, if you want to do it, you have your dinner early, and then you can do the pranayam. In morning, you are already empty stomach, so you can do it that in the morning also. Afternoon, if you want to do it, and then at least 2 to 3 hours of gap should be there if you are doing any pranayam or any uh, asanas. So that is there. And second thing, as I already have explained, you can do Anulom Vilom, you can do Brahmari, you can do Bhasrika, all these 2 3 pranayams you can do. You can do Shuddhi Kriya, which will clear your, this sinuses if you do the Shuddhi Kriya. So there are different Kriyas also which help to improve our lung capacity. This thing we can do it. There was, And one, yeah. if you have any more questions available with you, we can There were answer. two, Or three else, questions oh, more remaining. yes, yes, So please, please. I think I have already answered. What is the breathing exercise schedule to be followed? I think I have already covered that. And what are the primary symptoms of heart related malfunctions? अगर हार्ट का कोई इश्यू है तो बेसिकली यू नीड टू चेक कोई palpitation नहीं हो रहा है, breathlessness नहीं हो रहा है, या फिर का swelling, पैर पे कोई swelling तो नहीं है. और दिस वेरी सिंपल थिंग्स यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट योर. और अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, इट्स लाइक अ whether you are in a yellow zone, green zone or a red zone. सो येलो जोन ये होता है कि हमें थोड़े सिम्टम्स होते हैं और हमें पता है कि क्या करना है. बट अगर हमें ये चीजें, ये सिम्टम्स जो मैंने बताया आपको, अगर बहुत ज्यादा हो रहे, इट्स रेड फ्लैग. मतलब आपको इमीडिएटली इमरजेंसी में या आपके डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है और आपका चेकअप करवा लेना है, ताकि हम वी कैन प्रिवेंट एनी फर्दर कार्डियक कॉम्प्लिकेशन. ठीक है. Or someone has asked that if my lungs are weak, will it affect my heart? Definitely. अगर हम lungs में बहुत सारे condition होते हैं कि fibrosis होता है या फिर COPD होता है, तो ये दो चीजों में क्या होता है कि अगर lungs weak है, मैंने already connection आपको बता दिया है कि lungs weak है तो मतलब हमारा ऑक्सीजन देने का capacity ही कम हो गया है हार्ट को, तो हार्ट का पंपिंग भी इफेक्ट करेगा. हार्ट जो हमारे शरीर में ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो देता है सारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए, तो वो हार्ट कैसे दे पाएगा, तो उसका पंपिंग पे अफेक्ट करेगा और डिफरेंट कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है. तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आई ट्राई टू आंसर. थैंक यू डॉक्टर. और एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा हार्ट के साथ आई एम हाईली डायबिटिक, और मेरा ओके. एक सेरिब्रल अटैक भी हुआ था 1 साल पहले, बाईपास सर्जरी. तो व्हाट ओके. प्रिकॉशंस आई शुड टेक during all these exercises and all? Is there any precautions required? Or yeah. यस यस डेफिनेटली. सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है सर कि जब भी हम, इफ यू आर ए डायबिटिक, सो डायबिटीज इज नॉट अ पैनक्रिया का डिजीज नहीं, इंसुलिन वाला प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ, इट्स अ मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट. मतलब सारे सिस्टम पे इफेक्ट करता है डायबिटीज, या सिर्फ हार्ट पे नहीं होता है या सिर्फ लंग पे नहीं होता है, सारे सिस्टम पे डायबिटीज की वजह से इफेक्ट होता है. So first thing is you have to be very much regular with your
शुगर लेवल्स। आप अगर रेगुलर HbA1c जो हमारा 3-3 महीने का एवरेज चेक कर रहे हैं, तो वो रेगुलरली चेक करना है। सेकंड थिंग, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको इफ यू आर ऑन इंसुलिन और इफ यू आर ऑन अ मेडिकेशन, यू हैव टू चेक योर टाइमिंग व्हेन यू आर टेकिंग दैट मेडिसिन एंड व्हेन यू आर डूइंग द एक्सरसाइजेस। क्यों? बिकॉज एक्सरसाइज करने से हमारे इंसुलिन लेवल कम हो सकते हैं, मतलब आपको इम्प्रूवमेंट होता है, शुगर लेवल कम हो सकते हैं। तो अगर हमने इंसुलिन लिया है और हम सेम मसल को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमने पैर पे लिया है और अगर हम पैर का एक्सरसाइज कर रहे हैं, चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया इज मोर। सो यू हैव टू सी टू इट वेयर यू आर टेकिंग, यू हैव टू इन्फॉर्म योर फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप किसी के अंडर में कर रहे हैं, और आपका टाइम क्या है, या फिर आपको एडजस्ट करना है टाइम। सो जब भी आपने इंसुलिन लिया है, उसका इमीडिएट या 2-3 घंटे में आपको नहीं करना है, मे बी आपका थोड़ा डिस्टेंस रखना है। और द साइट ऑफ इंसुलिन कि आपने कहाँ पे लिया है। दूसरा, मतलब हम सजेस्ट करते हैं डायबिटीज के पेशेंट को, व्हेनेवर यू आर डूइंग, डोंट डू इट एनीथिंग एम्प्टी स्टमक। अगर आपने अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल देती हूँ, मेरे वहाँ पे एक लंग के पेशेंट है, डायबिटिक भी है और हार्ट के पेशेंट भी है। तो he she came, just she walked in for a rehab and then she didn't have her lunch and she had taken her medicines, and then suddenly when she was doing, अगर वो साइकिल कर रही थी, और सडनली वो एकदम स्लो चलाने लगी। हमने नोटिस किया कि क्या हुआ, वो एकदम से कभी इतना स्लो नहीं चलाती है, एंड वी वर लाइक वेरी मच अलर्ट, एंड देन शी वाज लिटिल, that time she was not responding for maybe a second, maybe half a minute, and then we understood it's like diabetes thing, and then we immediately give her the sugar and we checked the sugar, and then that, so we found her sugar was very low, and then so she said I didn't have any lunch. So this is not the thing. You should know when you should eat and when you should exercise, and what is the distance, timing distance between your exercise and your eating. That is very important. And for a diabetic patient, definitely endurance training is very important. Endurance and the strength. जैसे कि सिर्फ वॉकिंग जरूरी नहीं है, वॉकिंग के साथ अगर आप कुछ साइकिलिंग भी कर रहे हैं, या फिर दूसरा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जैसे कि स्विमिंग कर रहे हैं, वो हो गया एरोबिक, मतलब एंड्योरेंस ट्रेनिंग। बट उसके साथ हमें थोड़ा वेट्स के साथ भी करना है, वजन उठा के भी हाथ का पैर का एक्सरसाइज करना है, या फिर थेरा बैंड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड होते हैं, उससे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं, जिससे हमारे मसल स्ट्रांग होंगे और उससे भी हमारा ये जो इंसुलिन का प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव होता है। सो ये एक अलग टॉपिक है कि डायबिटीज के साथ हार्ट के पेशेंट को कैसे रिहैब। सो इट्स अगेन इट्स अ प्रॉपर रिहैब, we planned it according to the patient condition. बट जनरल ये सारे प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए कि आप कभी मेडिसिन लेते हैं, कभी खाते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज मेनी अ टाइम व्हाट हैपेंस इफ योर डायबिटीज लेवल्स आर नॉट, बहुत फ्लक्चुएट होते हैं कभी कभी, तो वो भी जरूरी है, रेगुलर फॉलो अप विद योर डायबिटोलॉजिस्ट। दैट्स वन एडवाइस। Thank you, Dr. Purvi. I don't think there is any questions from the participants. So we don't have any more questions. So now we can close the session. And thank you very much, Dr. Puri, for the informative sessions. जो भी आपने suggestions दिए हैं, जो precautions लेना है, this will help us. और जो भी हमारे participants थे आज ये session में, and I think they will be benefited from this. और जो भी आपने techniques बोले हैं, and one important thing आपने जो mention किया music therapy, जो कभी भी कहीं भी लोग कर सकते हैं। तो ये सेशंस इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमको बहुत सारे नए चीज पता चलते हैं। जैसे मुझे भी ये आप अभी जो बोले कि अगर आप डायबिटिक है तो आप एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर मेडिकेशन वो सारा कुछ चेक करके, टिल डेट मैं सुबह मैंने वॉकिंग के लिए जाता, कभी कभी तो थोड़ा बहुत रनिंग भी कर लेता, बट आई नेवर चेक माई ये कि ये, तो ये सारे प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। तो ये सेशंस आपको ये हेल्प करते हैं कि कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, नॉट ओनली कि हार्ट को ही हेल्दी रखना है, ईच एंड एवरी ऑर्गन इन द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमको जो भी प्रिकॉशंस लेना है, मेडिकेशंस लेना है,
या डॉक्टर कंसल्टेशन करना है, तो हमको वो सारा कुछ टू बी हेल्दी, ये तो सारा कुछ साथ में लेके चलना पड़ता है. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सेशन. एंड आई वुड also like to thank Heart Health India Foundation and the other organization, Society for Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, for organizing this event. And thank you very much to all of you for your participation. और आशा करते हैं कि इसके आगे जो भी सेशंस होंगे तो आप लोग का सहयोग रहेगा. एंड थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर पूर्वी. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Heart Health India Foundation. Thank you, society, for giving me this opportunity.